Bismillahirrahmanirrahim. Starting T.S. Eliot's critical essay, Milton 1. Milton left bad influence on poetry. Indeed, Milton is a great poet, but it is rather puzzling to decide in what his greatness lies. He accepted that Milton is a great poet first, but then he said that I am still puzzled that in what matters his greatness lies. On careful examination, the marks against him appears to be more numerous and significant than the marks to his credit. And after said that, in a comparison, he said that when I judged the greatness, the pros and cons of John Milton's, then I came to know that the charge against him are more than the marks in his credit. As a man, not as a writer, as a man, he is antipathetic, and from every other point of view, he is unsatisfactory. Antipathetic means mutfarak mind ka hai. He can't make the things at the same platforms. He can't bring the things at the same time. उसका ज़हन इधर से उधर भटकता है और हर लिहाज से is unsatisfactory. His greatness as a poet has been sufficiently celebrated, not by T.S. Eliot, but by the critics and the people, by the readers and everyone before T.S. Eliot. The greatness of John Milton as a poet is celebrated, though largely for the wrong reasons. Now it is said by the T.S. Eliot that before him, the John Milton was regarded as a great poet and it was celebrated, but he said that he is celebrated for the wrong reasons. His misdeeds as a poet have also been called attention to. He said that he brought his misdeeds in attention to us, but it is necessary to assert his greatness in that what he could do well, he did better than any other one has ever done. तो कहता है जिस मामले में जॉन मिल्टन बेहतर कर सकता था उस मामले में तो उसने किसी की निस्बत भी सबसे बेहतरीन किया है. And at the same time, the serious charge against him that he subjected the English language to deterioration. Here is the charge. It must be noted. It is the serious charge against John Milton that he subjected the English language to deterioration. कि इसने इंग्लिश ज़बान को ज़वाल पजीर किया है. ये इसके अगेंस्ट चार्ज है. The badness of the bad verse of 18th century. You have studied John Milton's poem Paradise Lost, written in 18th century. You have also aware about the blank verse he has written, and he wrote a poetry which was in verse form. And he said that the badness of the bad verse of 18th century was due to Milton's influence more than that of Dryden or Pope. ड्राइडन के ऊपर भी इसी तरह का लगभग चार्ज है कि उसने भी डिटेरियोरेशन की तरफ लैंग्वेज को लेकर गया और पोप के ऊपर भी. लेकिन कहता है कि जो बैड वर्स है, जो बुरी शायरी है या बैड वर्स की जो बैडनेस है 18th सेंचुरी में, वो सबसे ज़्यादा मिल्टन के असर की वजह से है. ड्राइडन और पोप भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बुरा असर डाला है बैड वर्स के ऊपर, पोइट्री के ऊपर, लैंग्वेज को डिटेरियोरेशन की तरफ ले जाने में, वो मिल्टन ने डाला है. बट बैड इन्फ्लुएंस, अब ये बात आगे जो आ रही है बड़ी अहम है. बैड इन्फ्लुएंस इज़ नॉट ए सीरियस चार्ज बिकॉज मच रिस्पॉन्सिबिलिटी डिजॉल्व्स ऑन द पोइट्स ऑफ सेंचुरी देमसेल्व्स फॉर बीइंग सो इन्फ्लुएंस्ड. लेकिन कहता है कि नहीं, बैड इन्फ्लुएंस होना ये कोई बड़ा सीरियस और संजीदा चार्ज नहीं है, क्योंकि जॉन मिल्टन ने कहा गया कि जॉन मिल्टन के असर की वजह से यह बैड वर्स थी. लेकिन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उन पोइट्स के ऊपर आती है जिन्होंने जॉन मिल्टन के असर को कबूल किया है. तो वो ना उसके असर को कबूल करते. दे वर फ्री टू एक्सेप्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ जॉन मिल्टन. सो वाई दे हैव एक्सेप्टेड हिज इन्फ्लुएंस. So more responsibility lies on the shoulders of poets of 18th century.
The charge is more serious if it is affirmed that Milton's bad influence was not limited to 18th century or to bad poets. अब ये चार्ज सबसे ज़्यादा संजीदा उस वक़्त होता अगर ये कहा जाता कि मिल्टन का इन्फ्लुएंस सिर्फ 18वीं सदी तक महदूद नहीं है, या बैड पोइट्स के तक नहीं है, बट दैट इज़ स्टिल टू बी ग्रैपल्ड विद, बल्कि अब भी जॉन मिल्टन का असर पोइट्री और पोइट्स के ऊपर बाकी है। तो ये चार्ज उससे भी ज़्यादा शायद संजीदा हो जाता। अभी तक तो जो चार्ज ये लगाया गया है कि ही इन्फ्लुएंस द बैड वर्स ऑफ 18th सेंचुरी, बट ये नहीं कहा गया कि अभी तक भी वो चार्ज बाकी है और असर बाकी है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट मिल्टन इज़ हिज ब्लाइंडनेस। अब यहाँ से ये जो फैक्ट है, मिल्टन वाज अ ब्लाइंड मैन, though not in his early age he was not by birth blind, but it happened in his middle age. So before his middle age he was all right, but after that he became blind. तो ये फैक्ट की आगे बड़ी डिस्कशन होगी, इसे ज़रूर नोट कीजिएगा। Had he been a man of very keen senses, अगर वो बहुत कीन सेंसेस वाला होता, देयर आर 5 सेंसेस ऑफ अ पर्सन। Now, the 4 senses of John Milton's are working properly, but he lost his one sense. और वो देखने की हिस्स जो थी ब्लाइंडनेस की वजह से वो ख़त्म हो चुकी। तो अगर वो कीन सेंसेस वाला होता, अदर देन हिज ब्लाइंडनेस, बाकी जो सेंसेस उसकी बड़ी कीन्स होती, हिज ब्लाइंडनेस वुड नॉट हैव मैटर्ड सो मच, तो शायद उसका अंधा होना इतना मैटर ना करता। यानी वो अगर शुरू से अंधा होता तो फिर उसके पास तो ये जो सेंस थी वो होती ना, और बाकी तमाम सेंसेस, क्योंकि अंधा आदमी ज़ाहिर अपनी अदर सेंसेस के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है क्योंकि उसके पास एक सेंस ऑलरेडी नहीं होती। बट विदर्ड अर्ली बाय बुक लर्निंग एंड डिपेंडिंग सोलली ऑन द सेंस ऑफ लर्निंग, लेकिन चूँकि शुरू के अंदर उसने सिर्फ बुक्स को पढ़ा है, he learned from books and depends solely on the sense of learning, और मुकम्मल तौर पर सिर्फ और सिर्फ सेंस ऑफ लर्निंग के ऊपर, सीखने के ऊपर वो डिपेंड करता रहा था। इट मैटर्स अ ग्रेट डील। तो अब उसका अंधा होना बाद में इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। इट सीम्स टू हैव हेल्प्ड हिम टू कंसंट्रेट व्हाट ही कुड डू बेस्ट। That's why he started concentrating after his blindness. He has started concentrating what was best for him, what was best near to him. अब वो क्या था? अब 2 चीज़ें आगे आएंगी। एक one is called the visual, another is auditory. तो एक चीज़ है विजुअलाइज करना। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मिल्टन बिकॉज ही वॉज ब्लाइंड। देख कर चीज़ों को विजुअलाइज तो कर नहीं सकता था, लेकिन उसकी जो सेंस ऑफ हियरिंग थी दैट वाज वर्किंग प्रॉपरली। तो इट मीन्स ऑडिटरी सेंस उसके अंदर बिल्कुल ठीक काम कर रही थी, सुनने की ताकत थी, सुन सकता था, और विजुअलाइज करना इट वाज नॉट पॉसिबल। We find no visual imagination conspicuous Milton's poetry। तो इस लिहाज से मिल्टन की पोइट्री के अंदर, अब तो इससे पहले भी एक तो होता है कि आप वर्ड्स को सुनते हैं, आपने लिंग्विस्टिक्स को कुछ पढ़ा तो यहाँ लिंग्विस्टिक और लैंग्वेज का टच है, तो you listen something and then you start you understand the meaning of that word। एक तो आपने उससे को सुना है, ऑडिटरी सेंस के ज़रिए, सुनने के ज़रिए, उस वर्ड के साउंड के ज़रिए आपने उसको समझ लिया गया है, और दूसरा है उसे विजुअलाइज करना, देखना, अपनी आंखों के सामने देखना, अपनी इमेजिनेशंस के अंदर देखना। सो वी फाइंड नो विजुअल इमेजिनेशन इसके अंदर कॉन्स्पिशियस इन मिल्टन्स पोइट्री। मिल्टन की पोइट्री के अंदर कोई विजुअल इमेजिनेशन नहीं है कि किसी चीज़ को हम विजुअलाइज को इमेजिन करके विजुअलाइज कर सकें, आंखों के सामने देख सकें। व्हाट वी फाइंड इन शेक्सपियर, जो शेक्सपियर के अंदर है। सो इन दिस सेंस शेक्सपियर वाज नॉट ब्लाइंड बट जॉन मिल्टन वाज ब्लाइंड। सो द शेक्सपियर्स पोइट्री और वर्ड्स कैन बी विजुअलाइज्ड, but it's not possible with John Milton's words. Shakespeare creates beautiful images pleasant to the eyes as well to the common sense। तो शेक्सपियर ऐसे इमेज पेश करता है जिसे जो हमारी आंखों को अच्छे लगते हैं। वी कैन विजुअलाइज देम बाय द पावर ऑफ आवर आइज, कन्वेइंग द फीलिंग ऑफ बीइंग इन ए पर्टिकुलर प्लेस एट ए पर्टिकुलर टाइम। बीइंग, फिलोसफिकली द वर्ड बीइंग मीन एग्जिस्टेंस।
So we feel of being means we feel that we also exist at a particular place, the particular place which is mentioned in the poetry, at a particular time, the time which is mentioned in the poetry. जो वक़्त उस शायरी के अंदर है, जो जगह उस शायरी के अंदर बयान की गई है, वी स्टार्ट फीलिंग आवरसेल्फ दैट वी आर सिटिंग देयर। अगर किसी 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 मिल्क मैन का जिक्र किया गया है, वी कैन विजुअलाइज द मिल्क मैन बिकॉज ही इज टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर मिल्क मैन। हम उस हमारे जेहन में आता है उस दौर का किस तरह का होगा। सो मिल्टन्स सेकंड पैराग्राफ, मिल्टन्स लैंग्वेज आर्टिफिशियल एंड कन्वेंशन, ये इसके ऊपर चार्ज था। With Shakespeare, the combination of words offer perpetual novelty. They enlarge the meaning of the individual words joined as procreant, cradle and rockery wood. कहता है शेक्सपियर के अंदर ये है कि जब वो दो अल्फाज को आपस में मिलाता है, कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स ऑफर परपेचुअल नोवेलिटी, तो वो उनकी शान और अजमत बढ़ा देता है। जब दो वर्ड्स आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे के मीनिंग्स के अंदर इजाफा करते हैं और वो मिलकर ऑर्डिनरी वर्ड्स नहीं रहते, पर्टिकुलर वर्ड्स बन जाते हैं, ख़ास अल्फाज बन जाते हैं। जिस तरह के प्रोक्रिएंट, क्रेडल या रॉकरी वुड वगैरह उसने ये वर्ड्स को यूज़ किया शेक्सपियर ने, तो इनके मीनिंग्स को एनलार्ज किया, बढ़ा दिया, मीनिंग्स को इजाफा कर दिया, उन्हें नोवेलिटी दे दी, अजमत दे दी उन वर्ड्स को। Milton's images do not give this sense of particularity, nor as separate words develop in significance. लेकिन मिल्टन के साथ मसला ये है कि ना तो वो वर्ड्स को यूँ पर्टिकुलर बनाता है, ख़ास महसूस बनाता है। जिस तरह कहा जाए कि ये इट्स अ बेंच, तो ये बेंच जो है इट्स जस्ट अ कॉमन थिंग, इट्स अ कॉमन थिंग। But if I said that the bench of iron, अहमद बेंच, तो अहमद का बेंच जो है ये एक ख़ास उसको बनाता है, पर्टिकुलर बनाता है। तो ये ना तो जॉन मिल्टन कोई सेंस ऑफ पर्टिकुलरिटी देता है और ना ही उसका सिंगल वर्ड जो सेपरेट है वर्ड है उसकी कोई अपनी अहमियत है। His language is artificial and conventional, that's why इसकी लैंग्वेज आर्टिफिशियल कन्वेंशनल है, ये रवायती किस्म की है। इसने उसके अंदर कोई नोवेलिटी नहीं लाई जिस तरह शेक्सपियर लेकर आया, उन वर्ड्स को कंबाइन करके उसके मीनिंग को एनलार्ज किया, ये नहीं करता। द इमेजरी इन ला एलर्गो एंड इन पेंसरोसो इज़ ऑल जनरल। सो द इसकी इमेज जो दिए गए जनरल इमेज है, पर्टिकुलर नहीं है। जिस तरह कॉमन नाउन्स प्रॉपर नाउन्स होते हैं, तो ये जो प्रॉपर नहीं है, कॉमन है। The writer quotes 6 lines from La Largo to show the imagery is general. No particular plowman, milkman, etc. ये milkman, plowman जो इसके 6 लाइन है लर्गो की जो यहाँ पे लिखी नहीं है, कोट की गई, उनके अंदर जिक्र किया गया है कैन बी इमेजिन, लेकिन इनका कोई ख़ास प्लोमैन नहीं है, ये कोई ख़ास मिल्कमैन नहीं है जिसका जिक्र हो। इट कुड बी एनी मिल्कमैन, कुड बी एनी प्लोमैन, वी कांट विजुअलाइज दैम एज ए पर्टिकुलर मिल्कमैन, एज ए पर्टिकुलर प्लोमैन। It is not unfair to say that Milton writes English like a dead language. तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं his syntax involves, जहाँ तक इसके जुमलों का ताल्लुक है, अगर इसके जुमलों को, इसके वर्ड्स को पढ़ा जाए तो हम ये ज़रूर कहेंगे कि जॉन मिल्टन की लैंग्वेज जो है ये डेड लैंग्वेज है। It gives no particular meanings. It is just an artificial, it is just a conventional language. But a tortuous style aimed at precision is not necessary when a dead one, when the sense of demands, हाँ जब सेंस हमारी कुछ डिमांड करती है और डेड की बात हो तो फिर यहाँ पे कोई हाई स्टाइल की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। when the language is artificial and conventional, then the style doesn't matter whether it's great style or it's very slow style, what kind of style it is, because it is a dead thing. थर्ड पैराग्राफ है मिल्टन का कंपैरिजन है हेनरी जेम्स के साथ। द राइटर कोट्स अ पैसेज फ्रॉम पैराडाइज लास्ट एंड ए प्रोज पैसेज ऑफ हेनरी जेम्स फ्रॉम द आइवरी टावर बाय वे ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन करने के लिए दो चीज़ें, जॉन पैराडाइज लास्ट और आइवरी टावर से जेम्स हेनरी जेम्स का पैराग्राफ है। बोथ यूज़ एलेबोरेट स्टाइल विच डिपार्ट्स फ्रॉम ल्यूसिड सिंप्लिसिटी। दोनों का मेथड जो है इट्स अ कम्प्लेक्स स्टाइल है। Both style is complex. It's not a lucid simplicity. There is no simplicity in their style.
ये वाज़े है, वाज़े किस्म की उसके अंदर सादगी नहीं है इनके स्टाइल के अंदर। द स्टाइल ऑफ जेम्स डिपेंड्स फॉर इट्स इफेक्ट अ गुड डील ऑन द साउंड ऑफ ए वॉइस। इसका जेम्स का स्टाइल जो है ये ऑडिटरी है, साउंड ऑफ वॉइस, साउंड के ऊपर डिपेंड करता है। जेम्स ऑन पेनफुली एक्सप्लेनिंग जेन खुद इसकी बात करता है कि मेरा स्टाइल जो है इट्स नॉट अ विजुअल स्टाइल, इट इज़ मोर ऑडिटरी एंड डिपेंड्स ऑन द साउंड ऑफ वॉइस। With James, the complication is deliberate to retain any of the real intricacies by the pass of mental movement। हमारे माइंड के अंदर से जब ये चीज़ें गुजर रही होती हैं तो बहुत सारी मुश्किलात आती हैं इसको अंडरस्टैंड करने के अंदर, यानी विजुअलाइजेशन नहीं होती है। और ये लगता है ऐसे कि जैसे ये जो डेलिबरेटली हम इसे विजुअलाइज करना चाहते हैं, बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू विजुअलाइज इट बिकॉज इट्स स्टाइल इज डिपेंड्स ऑन साउंड। और दूसरी तरफ आने मिल्टन अ सिंप्लीफाइड एंड एब्स्ट्रैक्ट थॉट इज डेलिबरेटली एक्सप्रेस्ड इन अ कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस। और शेक्सपियर के साथ, मिल्टन के साथ यह है कि वो जानबूझकर सादा और एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को डेलिबरेटली जानबूझकर कम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंदर एक्सप्रेस करता है। तो इन दोनों में फ़र्क है, तो दोनों की एडिटरी, लेकिन हेनरी जेम्स जानबूझकर इससे कम्प्लेक्स नहीं बनाता स्टाइल को, लेकिन जॉन मिल्टन इसे खुद जानबूझकर कम्प्लेक्स बनाता है। फॉर द सेक ऑफ म्यूजिकल वैल्यू, एज आई टोल्ड यू वाज ब्लाइंड, सो ही मोस्टली डिपेंड्स ऑन म्यूजिकल टोन। ही फॉर द सेक ऑफ म्यूजिकल टोन, नॉट फॉर सिग्निफिकेंस। सिर्फ अहम बनाने के लिए नहीं है कि अपने स्टाइल को अहम बनाने के लिए नहीं ऐसा करता, बल्कि उसकी म्यूजिकल वैल्यू, ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, इन साउंड। That's why he preferred to make it more complex deliberately and depending on musical value. It is not that Milton has no important idea to convey, but that his syntax is determined by musical significance meant for the ear. ये कहना बड़ा अहम है कि मिल्टन, ऐसा नहीं कि मिल्टन के पास कोई इंपॉर्टेंट आइडिया नहीं था इसलिए उसे कम्प्लेक्स बनाया, नहीं। जहाँ तक उसका वो अपने सिर्फ सिंटैक्स को, जुमले को म्यूजिकल सिग्निफिकेंस देना चाहता था, विच इज़ मीन्ट फॉर ईयर, ताकि वो हमारे कानों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम सुन सकते हैं। एंड नॉट बाय एनी अटेम्प्ट टू फॉलो एक्चुअल स्पीच और थॉट। जो असल बात है ना हम उसके पीछे जाते हैं, कि ना उसे समझते हैं कि वो बात क्या कर रहा है, ना उसके मीनिंग्स का इतने समझ आती है। रियली कोई पर्टिकुलर मीनिंग्स नहीं हमें उससे मिलते। द रिजल्ट विद मिल्टन इज़ इन वन सेंटेंस ऑफ द वर्ड रिटॉरिक। अगर ये सारी बात को इकट्ठा करें तो हम कहेंगे उसका स्टाइल रिटॉरिक है। खतीबाना अंदाज है, very powerful style in which the in particular words are in a specific way are very forcefully used by the high pitch of sound, depending on the high pitch of sound which can satisfy our auditory sense. We start liking the style without understanding that what is conveyed, what the poet trying to convey, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो रिटॉरिक ये होता है कि जिसके अंदर खतीबारा गर्जदार स्टाइल है, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी बैड इन्फ्लुएंस। लेकिन ये रिटॉरिक स्टाइल इट इज़ यूज कन्वेंशनली फॉर द मैटर ऑफ स्पीच स्पेशली, तो ये कोई बुरा तो नहीं होता। बहरहाल इट मे बी कंसिडर्ड बैड इन रिलेशन टू द हिस्टोरिकल लाइफ ऑफ लैंग्वेज एज ए होल। हाँ, ये खुद स्टाइल तो बुरा नहीं, अगर लैंग्वेज के साथ इसको कंपेयर करें इसकी हिस्टोरिकली, तो ये बुरा समझा जाता है, क्योंकि इसके अंदर मीनिंग समझ नहीं आते, सिर्फ स्पीच के ऊपर डिपेंडेंस होती है। Of the two poets, Milton and Dryden, now Shakespeare is a great poet who brought a very living language, and it was exploited by, it was divided into two parts. The language of living language of Shakespeare is divided into two parts, which is exploited by two different writers. One is John Milton, other is Dryden. एक हिस्सा ड्राइडन ने तबाह बर्बाद करके रख दिया इसका, और दूसरा हिस्सा जो था उसका वो मिल्टन ने तबाह बर्बाद किया। लेकिन दोनों में फ़र्क है, वो क्या देखते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्राइडन वॉज लेस हार्मफुल। वो ये है कि ड्राइडन का असर ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है, बिकॉज ही प्रिजर्व्ड द ट्रेडिशन ऑफ कन्वेंशनल लैंग्वेज इन पोइट्री एंड वन कैन ईजिली गेट बैक टू हेल्दी लैंग्वेज। ये फ़र्क है कि इसने भी कन्वेंशनल लैंग्वेज को पोइट्री में इस्तेमाल किया, लेकिन फिर हम इसके असर से निकल कर, यानी ड्राइडन के असर से निकल कर हम फिर हेल्दी लैंग्वेज की तरफ आ सकते हैं। बट इट इज़ नॉट सो विद मिल्टन। लेकिन मिल्टन में ऐसा नहीं है, and his influence on the 18th century was more deplorable than Dryden. इसलिए he also used the conventional in artificial language, but we still there in the influence of John Milton, so we can't get back to the healthy language. इसलिए जो इसका असर था 18th century के ऊपर, ये काबिल रहम ला डेप्लोरेबल है ड्राइडन की निस्बत।
नेक्स्ट पैराग्राफ है मिल्टन एंड जेम्स जॉयस का कंपैरिजन। Milton and James Joyce have initial similarities. Both have strong musical taste and abilities. ये क्योंकि इसका भी दोनों का musical taste है. Followed by musical training, wide and curious knowledge, gift for acquiring language, and remarkable power by memory, perhaps fortified by defective vision. इन सब के अंदर, इन दोनों के अंदर शुरू में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं. क्या हैं? इन दोनों ने म्यूज़िकल ट्रेनिंग ली है, दोनों ही नॉलेज के बारे में बड़े क्यूरियस हैं, दोनों के पास लैंग्वेज को एक्वायर करने का, हासिल करने का गिफ्ट है, दोनों ने लैंग्वेज को एक्वायर की है, दोनों के पास रिमार्केबल मेमोरी मौजूद है, और जिनके साथ इनका उनके इर्द गिर्द एक डिफेक्टिव विजन भी है, यानी इनका विजन से ख़त्म हो चुका था, यानी ब्लाइंड थे. द इम्पॉर्टेंट डिफरेंस, ये दोनों में ये सिमिलैरिटी है. द इम्पॉर्टेंट डिफरेंस इज़ दैट जॉयस इमेजिनेशन नेचुरली ऑफ सो प्योरली एडिटरी एज टाइप एज मिल्टन. लेकिन जॉयस की इमेजिनेशन ज़्यादा नेचुरली प्योरली एडिटरी नहीं है, जिस तरह मिल्टन टोटली एडिटरी है, लैंग्वेज इसकी टोटल एडिटरी है, विच इज़ फॉर आवर ईयर्स नॉट फॉर आवर आइज. बट हीज दिस डेवलपमेंट in his later years, however, as in work in progress, the auditory imagination is abnormally sharpened at the expense of visual. लेकिन बाद के अंदर, जेम्स जॉयस के अंदर, बार के अंदर, वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर जो इसकी एडिटरी इमेजिनेशन थी वो उसकी निस्बत ज़्यादा विजुअलाइजेशन ज़्यादा होने शुरू हो गई. बट दिस डेवलपमेंट सीम्स टू बी ड्यू टू सर्कमस्टांसेस. लेकिन शायद ये हालात की वजह से ऐसा हुआ था, डेलिबरेटली नहीं हुआ था. वेयर एज मिल्टन बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ साइट मे बी सेड नेवर टू हैव सीन एनीथिंग. लेकिन चूंकि मिल्टन के पास ये कोई सेंस थी नहीं, ब्लाइंड था, तो ये कहा जाता शायद उसने किसी चीज़ को देखा ही ना हो. एंड सो फॉर हिम द कंसंट्रेशन ऑफ साउंड वाज होली अ बेनिफिट. तो इसलिए उसने सबसे ज़्यादा साउंड के ऊपर डिपेंड करना शुरू किया, और यही उसके लिए फ़ायदेमंद था, क्योंकि विजुअलाइज तो कर ही नहीं सकता था, इसलिए उसने सारा डिपेंड करना शुरू कर दिया उसके ऊपर. हालांकि जेम्स जॉयस की जो इमेजिनेशन एडिटरी से बाद के अंदर विजुअलाइज होना भी शुरू हो गई. एडिटरी इमेजिनेशन प्रोसेस किधर गया? One feels greater pleasure in reading Paradise Lost, while there is least to visualize. अब हम उसे पढ़कर पैराडाइज लास्ट को तो बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन उसमें विजुअलाइज करने को कुछ नहीं है. द डिमली लिट हेल डजंट शॉक द आइज एज गार्डन ऑफ एडन डज. जिस तरह एडन का गार्डन है, इसी तरह हेल का मामला, ना जन्नत और दोज़ख जो उसमें दिखाई गई हैं वो किसी तरह से भी हमारी आंखों के सामने नहीं आती. हमने कभी भी एडम को विजुअलाइज नहीं किया, ईव को विजुअलाइज नहीं किया, ना गार्डन को विजुअलाइज किया, ना हेल को विजुअलाइज किया. हम पढ़ा है one gets pleasure from the verse by deliberate effort not to visualize Adam and Eve and their surrounding. ना हम एडम और ईव को, ना उसकी सराउंडिंग को विजुअलाइज करते हैं, बस हम जो पढ़ते हैं उस वर्स को अपनी एफर्ट से अगर विजुअलाइज करते हैं और उसे पढ़कर प्लेयर हासिल करते हैं. लास्ट पैराग्राफ है डिसएडवांटेज ऑफ रेटोरिक स्टाइल. वी हैव स्टडीड दैट जॉन मिल्टन स्टाइल इज रेटोरिक इन इट्स नेचर. So he said that its influence is not bad, but what are the disadvantages of this rhetoric style? There is a disadvantage in the rhetoric style because the emphasis on the auditory imagination at the expense of visual cause a dislocation. क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारा जो तवज्जो होती है रिटोरिक स्टाइल के अंदर वो ऑडिटरी इमेजिनेशन में, सुनकर इमेजिन करने पर है, और जबकि दूसरी तरफ विजुअल है, हम विजुअलाइज करने की बजाय सुनकर इमेजिन करते हैं, और इसकी वजह से डिसलोकेशन, हम कई जगहों पे उस असर से दूर हो जाते हैं. जिस जगह हमें जो चीज़ हमें विजुअलाइज करनी चाहिए वहाँ तक पहुँच नहीं पाते. सो दैट द इनर मीनिंग इज़ सेपरेट फ्राम द सरफेस एंड टेंड्स टू बिकम समथिंग अकल्ट. और इस तरह जो हमारे अंदर मीनिंग होता है और जो बाहर मीनिंग हम उसको समझ रहे होते हैं, उन दोनों में फ़र्क आना शुरू हो जाता है. इस तरह जिस तरह एक अंधा आदमी अमराज चश्म का शिकार हो जाता है ना, अकल्ट होता है, इसी तरह हमें भी समझ नहीं आता कि इसका मीनिंग क्या है. हम अंधे हो जाते हैं, जो कुछ हम देख रहे होते हैं असल में वो होता नहीं है. It is difficult to appreciate Paradise Lost properly unless one reads it in two different way. अब दो मुख्तलिफ, अगर Paradise Lost को अप्रीशिएट करना है तो दो मुख्तलिफ तरीके हैं. फर्स्ट solely for the sound and second for the sense. एक तो है सिर्फ इसे पढ़कर उसकी साउंड को सुनकर विजुअलाइज करें, और दूसरा का अपनी बाकी सेंसेस को भी यूज़ करें.
द ब्यूटी ऑफ पोइम कैन हार्डली बी एंजॉयड वाइल वी आर स्ट्रगलिंग विद द मीनिंग। जब हम मीनिंग ही को नहीं समझ रहे होंगे, स्ट्रगल कर रहे होंगे, तो फिर इस पोइम की ब्यूटी को समझना भी मुश्किल होगा। शेक्सपियर दांते आर फ्री फ्रॉम दिस डिफेक्ट। शेक्सपियर दांते में ये नहीं, आप उसको समझते हैं, मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं, विजुअलाइज भी करते हैं। The writer feels that his appreciation of Milton doesn't lead any way outside the mazes of sound। हाँ, मिल्टन को अगर विजुअलाइज, अगर मिल्टन को अप्रिशिएट करना है तो सिर्फ और सिर्फ उसकी साउंड की बुनियाद पर है। There is glimpse of theology which is repellent and should have been left alone। हाँ, पैराडाइज लास्ट के अंदर थियोलॉजी यानी रिलीजियस नॉलेज बहुत ज़्यादा है, और विच इज़ रेपिलेंट, जो नागवार है। और इसका कहना यह है कि शायद इसने खुद इसको पैराडाइज लास्ट को पढ़ा ही नहीं है। एंड शुड हैव बीन लेफ्ट अलान, और सिर्फ जो असर जो रखा गया है, जो जोर दिया गया, वो थियोलॉजिकल नॉलेज, रिलीजियस नॉलेज के ऊपर है। द कंसंट्रेशन open the auditory imagination leads Milton to at least on occasional levity। अगर हम कंसंट्रेट करें ऊपर इस ऑडिटरी इमेजिनेशन पे, तो फिर हम चले जाते हैं, हम संजीदगी के साथ में भी इसको समझ सकते हैं। वन कैन इंजॉय वट कैन ईजीली बी अंडरस्टूड। तो फिर जो कुछ समझ आ जाए, जितना समझ आए बस उसी से इंजॉय कर लें, बस उसकी ऑडिटरी इमेजिनेशन से इसको मिल्टन को संजीदगी की तरफ ले जाएं समझने के अंदर, जितना समझ आए उसको समझ लें, खुश हो जाएं। इंडीड मिल्टन एक्सप्लॉइट्स प्रॉपर नेम्स विद ग्रेट एडवांटेज। मिल्टन ने तो प्रॉपर नेम्स को भी एक्सप्लॉइट किया, असल नामों को भी इसने इस्तेमाल किया है। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट एंड जेम्स जॉयस वर्क इन प्रोसेस कैन बी प्लेस साइड बाय साइड फॉर कंपैरिजन। दोनों के काम को, जेम्स जॉयस के और पैराडाइज लास्ट को, वर्क इन प्रोग्रेस और जेम्स उसके पैराडाइज लास्ट को इकट्ठे रखें, कंपैरिजन करें, बिकॉज दे रन अ सिमिलर लाइन, क्योंकि दोनों एक ही अंदाज पे लिखे गए हैं। एंड बोथ पोइट्स आर सो एमिनेंट, और दोनों अहम पोइट्स हैं। अदर राइटर्स हैव अटेम्प्टेड समथिंग वेरी डिफरेंट, लेकिन दूसरे राइटर ने इनसे कुछ डिफरेंट लिखा है, और इन दोनों ने एक ही सेंस में लिखा है। When Milton is judged by the standard of language and poetry, not merely of England but of whole history of European literature, अगर हम जॉन मिल्टन को जज करें लैंग्वेज के स्टैंडर्ड्स पे, यानी जिस तरह हमने अभी लैंग्वेज की बुनियाद पे इसको T.S. एलियट ने इसको परखा है, और इसकी पोइट्री को इंग्लैंड की हिस्ट्री और यूरोपियन लिटरेचर की बुनियाद पे ना करें, इट कैन बी सेड दैट ऑल्दो मिल्टन रियलाइजेस प्रॉबली वन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन पोइट्री, तो वो अपनी पोइट्री में एक अहम एलिमेंट को लेकर आता है। ही मे स्टिल बी कंसिडर्ड टू हैव डन मच डैमेज टू इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम विच इट हैज़ नॉट होली रिकवर्ड। तो फिर ये कहा जाएगा कि इसने इंग्लिश लैंग्वेज को वो नुकसान पहुंचाया है जिससे आज तक इंग्लिश लैंग्वेज रिकवर नहीं कर सकी, उस नुकसान को अभी तक अपनी बेहतरी नहीं ला सकी। ये कब मुमकिन है? इफ़ वी जज जॉन मिल्टन्स पैराडाइज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज instead of the other history of European literature, without keeping that what remain the tradition in European literature। दूसरी सेंस के अंदर, in the sense of epic, it's a great epic, and one of the words great epic which is ever written। So here the total discussion of T.S. Eliot was on the basis of its language। यहीं पे इसको एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एसे इसका मिल्टन 2 के साथ हाजिर होंगे।